अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी वार्म वेलकम। मेरा नाम है सालिम रहमान एंड आई एम बीइंग जॉइंड टुडे बाय आवर गेस्ट खुबैब कयानी साहब। खुबैब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू फॉर joining us in today's show. And खुबैब साहब, आपका आके फॉर्मल तारुफ करवाएंगे. We will be back after the admin team shows a brief introduction to Noor International University. Then we'll come back and start the rest of our show. So admin team, over to you. Sure, sure. Want to study allied health sciences or Doctor of Physiotherapy with a paid house job at hand? If yes, then Noor International University, a project of Fatma Memorial Hospital, is your place. Industry expert faculty and cutting-edge resources at Noor International University will make your student experience exceptional. Noor International University is the only university in Lahore that offers immediate job placement opportunities at Fatma Memorial Hospital. Graduates of Noor International University are working across Pakistan and abroad in well-paid government jobs, hospitals, private clinics, multinationals, gymnasiums and wellness centers. Fall 2022 admissions open now. Contact us at 032044555148 or visit www.niu.edu.pk. Great, welcome back. So आइए जी, हम तारुफ करवाते हैं खुबैब कयानी साहब का. Khubaib Kayani is among the few psychology professionals of Pakistan who has remained on both sides of the psychology world, and I'll just get into that. He was inspired to become a psychology professional in an isolated psychiatric ward where he was admitted as a potential suicide case with clear symptoms of OCD. He was only a matriculate back then, and after getting fed up with the insensitive treatment, he ran off from that ward and started his journey to become a psychology professional himself. Today, he has done his BS Honors, MPhil, ADCP, and MBA Management, and several international certifications from that point on, and has touched millions of young lives across Pakistan. He has the honor to train psychologists from all SAARC countries in Bangkok and Thailand, and has represented Pakistan on multiple international platforms. खुबैब साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया. आज का हमारा जो टॉपिक है, challenges of self-esteem in youth, is something जो कि बहुत pertinent है हमारे young colleagues के साथ जो हमें आज join कर रहे हैं, either live और those colleagues जो कि subsequently पढ़ेंगे. Thank you, आपने share की अपनी एक वो जिसको मैं checkered past या एक difficult situation which you personally went through. तो थोड़ा सा अगर वहीं से शुरू करें, because I think context के लिहाज से it would be appropriate if we can get a little bit of further background on that. Over to you. जी, थैंक यू वेरी मच जी. बिल्कुल, मैं अपने पास्ट को छुपाने की कोशिश नहीं करता हूँ, और उसकी एक वजह है, उसके पीछे एक लार्जर पर्पस है. वो लार्जर पर्पस ये है कि आई बिलीव कि जो मेरी कहानी है, जो मेरी स्टोरी है, इट कैन हेल्प मैनी अदर स्टोरीज जिनको फिल वक्त एक छोटे से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इंस्पिरेशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत है. आई बिलीव कि मेरी स्टोरी जो है वो छोटा सा इंस्पिरेशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है काफी सारी स्ट्रगलिंग स्टोरीज को. मैं एक चौकीदार था, मेरे वालिद साहब एक क्लर्क थे और मैं एक चौकीदार था. 4-5 साल तक लगातार मैं चौकीदारी करता रहा जगह के ऊपर, और उस टाइम पे फोन्स वगैरह मौजूद नहीं थे और हमारे पास इतनी इस्तात नहीं थी कि हम फोन खरीद सकते हैं. और आई वाज जेनेटिकली प्रीडिस्पोज के मेरी फैमिली में कुछ पहले लोगों को भी ओसीडी था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और मुझे ऑब्सेशंस आना स्टार्ट हुए उसी चौकीदारी के दौरान में, बिकॉज आई वाज नॉट इन कांटेक्ट विद माय पेरेंट्स. मैं एक दूर दराज शहर के अंदर था और मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ पे, और मैं किसी किस्म का मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था. तो एक आइसोलेटेड लाइफ गुजार रहा था, बड़ी प्रेशर्ड लाइफ थी वो, जिसमें दिन के टाइम हमें मजदूरी करनी होती थी और रात के टाइम पे ज्यादातर रातें आपको चौकीदारी करनी होती थी, और बड़ी महदूद सी तकरीबन 3,000 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मेरी पे हुआ करती थी. और वो जो है उसमें से शायद 700-800 या 400 रुपया जो अपने पास रखता था मैं, और बाकी सारा उधर जाता था, खाना वगैरह मुझे वहां से मिल जाया करता था. तो काफी मुश्किल लाइफ थी. वहां पे मेरा ओसीडी जो है वो ट्रिगर हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई स्टार्टेड टू हैव ऑब्सेशंस अबाउट रिलीजियस अथॉरिटीज. ओसीडी का एक फीचर है कि आपको रिलीजन के जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं, इवन गॉड हिमसेल्फ जो है, उनके बारे में जो है वो आपको कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं जो आप बतौर इंसान या बतौर मुस्लिम
या बतौर एनी रिलीजन जो भी कोई भी प्रैक्टिस करता है, आप अपने गॉड के बारे में वो समझना नहीं चाहते होते, आप उन ऑब्सेशंस को अटेंड नहीं करना चाहते, बट दे कम लाइक अ बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स, लगातार आते रहते हैं, एंड दे डिस्टॉर्ट योर सेल्फ एस्टीम, जो कि आज हमारा टॉपिक है। आपने अपनी आइडेंटिटी को सेट किया होता है, तो उन्होंने आके उन ऑब्सेशंस ने मेरी सेल्फ एस्टीम जो है उसको बैडली डैमेज कर दिया। आई हैड नो आइडिया कि एक बीमारी है, और मुझे लगा कि सिर्फ दुनिया में एक मैं ही ऐसा फर्द हूँ जो कि खुदा के बारे में, जो कि मजहबी हस्तियों के बारे में बहुत गलत तरीके से सोच रहा है, और उसके जहन में लगातार इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। एंड one bad day I decided to commit suicide, और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने I took a shower and I prepared my body for the everything, and then I just bought the pills. Or at the very last moment, one of my colleagues who is still alive, he is a young person as also, he captured those pills, and he informed my family that this is a thing that is going to happen and you need to be careful. एंड वहां से मुझे जो है वो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जो है मेरी फैमिली जो है वो लेके चली गई, और उस साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, जो कि पाकिस्तान के एक बड़े शहर के अंदर था, इनफैक्ट इसी शहर के अंदर था, वहाँ पे मुझे इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया गया फ्रॉम द साइड ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, और वो बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा वेल नेम्ड हॉस्पिटल है, कि आई डिसाइडेड टू रन ऑफ फ्रॉम दैट वार्ड। वो एक आइसोलेटेड वार्ड की एक कमरा होता है जिसमें वॉशरूम भी कमरे के अंदर ही होता है आपका। बहुत अजीब सी वार्ड होती है आपके लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने ये असेस किया कि अपने लिए दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि है क्या। उन्होंने जल्दी से उसको कहा जी कि ठीक है कैसे होगा। देन मुझे लगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मुझे ट्रीट कर पाएंगे। जस्ट रैन ऑफ फ्रॉम देयर एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ बिकमिंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड इट टुक मी अराउंड 2007 onwards, I think 8-10 years to become a clinical psychologist, and then I had the honor of serving Pakistani people and global audience as well, and I have touched many lives. But the biggest achievement that I believe that I have achieved during this whole time is the fact that my parents were very from a very humble background, and they had no idea what is happening. They wanted to help me, but they had no idea how to help a young person who is struggling with such kind of disorder. So they did their best, but there was a moment जहाँ पे जाके उनको लगा कि they can't do anything more, and वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, and I saw them crying, and I saw them helpless, and this is a very painful feeling, the most painful feeling in the world, to see your parents crying because of you. So the biggest achievement is that my parents are very proud of me now, and they feel like that they have given birth to a good son, a good human being, and that's the best thing, that's the best feeling to have, I believe. माशाल्लाह। सो आई थिंक जो आपने कहा कि राइटफुली सो दे शुड बी प्राउड पेरेंट्स, क्योंकि ये जो पर्सनल एडवर्सिटी जिसके थ्रू आप गुजरे, पर्सनल चैलेंजेस के थ्रू गुजरे, और आपने अपने हमारे साथ शेयर की, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जिस तरह आप कहते हैं आप छुपाते नहीं है, बट नॉट ओनली आपने ना छुपाया, बट माशाल्लाह वो कहते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। आपने वाकई उसको पकड़ के यू ट्विस्टेड इट अराउंड एंड चेंज इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी. Or by all means, not just a personal achievement, but I think an achievement for this area of specialization of clinical psychology, to have achieved what you have achieved, mashallah. Kudos to you. So Khubaib साहब, let's delve a little bit into the topic जो हमारे सामने आज है. Again, very important. और हम शुरू करते हैं सेल्फ एस्टीम इन यूथ से कि जी व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फ एस्टीम, आप किस तरह उसको डिफाइन करते हैं, एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, सो दैट पीपल कैन बी अ लिटिल मोर अवेयर. आई थिंक अवेयरनेस इज स्टेप 1. इन दोनों चीजों के बारे में आप आगाह कीजिए हमें जरा प्लीज. जी बिल्कुल, थैंक यू. ये एक बहुत अच्छा सवाल है. थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगा कि जो यंग लोग हैं पाकिस्तान में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं और सेल्फ एस्टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. डेफिनेटली we'll share the definition. यंग लोग पाकिस्तान में अराउंड 64% ऑफ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अंडर 29 है. एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है, और इस बड़े ग्रुप को जब हम स्टेटिस्टिकली देखते हैं तो हम कहते हैं कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दिस कंट्री हैज, कि इतना बड़ा वर्कफोर्स इनके पास है और यंग लोग हैं और हर तरह की एनर्जी है इनके पास. बट इसी अपॉर्चुनिटी के अंदर एक थ्रेट भी मौजूद है. अगर हम उनको प्रॉपर्ली अटेंड ना कर पाए, उनकी एनर्जीज को प्रॉपर्ली पॉजिटिव चैनल्स ना दे पाए, तो मसाइल होंगे. और उनकी एनर्जीज को पॉजिटिव चैनल्स देने के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो अच्छी हो, वो बैलेंस्ड हो, प्रॉपर हो,
और वो अच्छा फील कर रहे हो। सेल्फ एस्टीम को यूजुअली आमतौर पर लोग जो है वो ईगो से मिक्स कर जाते हैं। बहुत सारे टीनेजर्स को आप देखते हैं, बहुत सारे यंग लोगों को आप देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनके आसपास के लोग जो हैं उनसे थ्रेटेंड फील कर रहे होते हैं, उनसे हल्का सा टॉक्सिसिटी उनको आ रही होती है कि कुछ कुछ गलत है, लेकिन दे आर जस्ट शोइंग ऑफ देयर कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ एस्टीम जो है इट इज बेसिकली कि सादा तरीन लफ्जों में कि आपकी नजर में आपकी कितनी इज्जत है, हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ, हाउ मच यू अप्रिशिएट योर सेल्फ, और how much you think that you are a good person or you are a person who has value। और ईगो जो है सेल्फ एस्टीम के पीछे आपको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिसको रेफरेंस पॉइंट बना के सेल्फ एस्टीम को डेवलप करते हैं। यू नीड एक्चुअल अचीवमेंट्स जिनकी बेस के ऊपर आप अपनी सेल्फ एस्टीम जो है वो डेवलप करते हैं। बट इन द केस ऑफ ईगो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट। इफ यू आर, मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, हमारे गांव देहातों के कल्चर में अक्सर ये देखा गया कि एक लड़का जो है उसके पास एक लड़की की बनिस्बत ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस होता है, ईगो बेस्ड कॉन्फिडेंस होता है। वो किसी होता है सिर्फ और सिर्फ लड़का होने की बुनियाद के ऊपर होता है। तो उसके पीछे कोई अचीवमेंट नहीं होती है, दैट इज नॉट समथिंग जो उसने खुद से अचीव की है, वो तो एक नेचर का एक फिनोमेना है जहाँ पे वो आप मर्द हो गए या औरत हो गए। तो वहां पे ये चीजें जो है सेल्फ एस्टीम जो है वो हमेशा उसके पीछे कुछ ना कुछ अचीवमेंट होती है। वो शैलो जो आप कहिए कि कॉन्फिडेंस जो है विदाउट एनी अचीवमेंट जो है उसको हम ईगो के खाने में रखेंगे, और जो एक प्रॉपर अपनी जर्नी के थ्रू अचीव किया हुआ, अपनी स्किल्स के थ्रू अचीव किया हुआ जो आप कहें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अपनी 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 वैल्यू की एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना जो है उसको हम सेल्फ एस्टीम कहेंगे। ये डेवलप कैसे की जा सकती है? डेवलप ऐसे की जा सकती है कि आप सेल्फ एस्टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि आप नए एक्सपीरियंसेस कीजिए, आप अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डालिए जिनको आपको हैंडल करना नहीं आता, आप असर्टिव रहें अपनी नीड्स के बारे में, अपनी ख्वाहिशात के बारे में, अपनी राय के बारे में हमेशा बात कीजिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में। इफ यू हैव अ राय, इफ यू हैव एन ओपिनियन, आपके पास कोई किसी जरूरत के इजहार का आपका दिल कर रहा है तो लाजमन कीजिए, ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे। इनिशियली आपको काफी मुश्किल पेश आ सकती है अपनी इन सारी चीजों को करने में, बट आहिस्ता आहिस्ता ये एक स्किल है, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको डेवलप कर सकते हो, और इन्हीं स्किल्स को यूज करते 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 आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है कि आप बड़ी से बड़ी सिचुएशंस को प्रॉपर्ली डील कर सकते हैं। द बिगेस्ट गुड न्यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ एस्टीम वो ये है कि सेल्फ एस्टीम इज नॉट समथिंग दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, ये अगर ऊपर नीचे हो भी जाती है लाइफ के इवेंट्स में तो इसको रीएडजस्ट किया जा सकता है। यू कैन लर्न स्किल्स और वहां से आप अपनी सेल्फ एस्टीम जो है नए सिरे से डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको रीबिल्ड भी कर सकते हैं। देयर आर इवेंट्स जो कि आपकी सेल्फ एस्टीम को शैटर कर देते हैं। ये इवेंट्स जो हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, बट द गुड न्यूज इज के व्हाटएवर काइंड ऑफ कैलेमिटी यू गो थ्रू, आप अपनी सेल्फ एस्टीम को दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं। ठीक, एंड ठीक है, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा किया कि डिस्टिंक्शन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ एस्टीम and the development of value relating to your achievements or skill का ये बहुत बड़ा I think एक distinguishing point है। ये बताइए कि now we can come to, let's say, causes of low self-esteem and how to identify perhaps because आपने एक point बीच में बताया which I think औरत versus मर्द here in Pakistan, especially girl boy at younger ages, एक सर्टन एक्सपेक्टेशन होती है और हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली बहुत अनफॉरगिविंग हो सकती है, स्पेशली बोथ इन डिफरेंट वेज ऑन यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स एज वेल। आई थिंक बॉयज के लिहाज से एक्सपेक्टेशन, गर्ल्स के लिहाज से एक्सपेक्टेशंस व्हिच आर वेरी ब्रॉड जनरलाइजेशंस इन लेट्स से मोर डेवलप्ड सोसाइटीज। उसके लिहाज से बताएं कि जी व्हाट कॉजेस सेल्फ एस्टीम एंड पोटेंशियली हाउ do either parents या well wishers, जिस तरह आपके केस में किसी भले मानस इंसान ने, आपके किसी दोस्त ने इन्फॉर्म किया, they recognized कि you are going through a tough time, so how does one tend to recognize and what are the causes? ये दो अगेन मेरे सवाल हैं जी। जी बिल्कुल, लो सेल्फ एस्टीम जो है ये इसकी कॉजेज की अगर हम बात करें तो इसकी कॉजेज में जेनेटिक्स डेफिनेटली एक कॉज हो सकती है, रिसर्च ये बताती है। इसकी कॉजेज में पर्सनैलिटी जो है कंट्रीब्यूट कर सकती है, एक्सटर्नल इवेंट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, द वे यू थिंक अबाउट लाइफ एंड लाइफ इवेंट्स है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। आप कितना कंपेयर करते हैं अपनी सिचुएशन को किसी दूसरे की सिचुएशन के साथ, ये चीजें जो है वो आपकी हेल्थ कर सकती है, आपकी एज कर सकती है। हम डिफरेंट एजेस में देखते हैं कि सेल्फ एस्टीम के ऊपर डिफरेंट तरह के असरात जो हमें नजर आते हैं। हेल्थ की जब क्राइसिस आती है तो हेल्थ के क्राइसिस में भी डेफिनेटली सेल्फ एस्टीम जो है
वो लो होती है, उसके अंदर भी मसाइल पैदा होते हैं। होता क्या है, इनमें से कोई भी चीज हो रही है, उनमें से कोई भी चीज, कोई भी फैक्टर आ रहा हो, होता ये है कि आप जब लाइफ में बड़े हो रहे होते हैं तो आप यू सेट योर आइडेंटिटी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ फ्यू थिंग्स। उनमें से जब भी कोई मेजर चेंज आता है, कोई मेजर ट्रांजिशन आती है ना, तो वो आपकी आइडेंटिटी जो है वो उसको रीस्टैब्लिश करने की जरूरत पेश आती है। और उसको रीस्टैब्लिश करना इज अ मेजर मेंटल वर्क, जो कि आमतौर पर लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और सेल्फ एस्टीम, उसके अंदर एक चीज ये भी होती है कि आपकी सेल्फ एस्टीम भी शैटर होती है और आप उसको रीबिल्ड करना पड़ता है, या आपको किसी और सोर्स से अपनी सेल्फ एस्टीम जो है वो लेनी पड़ती है। द बिगेस्ट टिप जो कि मैं लोगों को देता हूँ और पेरेंट्स को भी देता हूँ सेल्फ एस्टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये होती है, खासतौर पर यंग चिल्ड्रन और टीनेजर्स और यंग लोग जो हैं उनके पेरेंट्स को देता हूँ या उनके गार्डियंस को देता हूँ, वो ये है कि जो सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स कर रहे होते हैं या टीचर्स कर रहे होते हैं, वो ये होती है कि किसी एक बच्चे को या बच्ची को आप लाइफ के किसी एक एरिया पे इतना उसको फोकस करवा देते हैं और उसकी इतनी तारीफ कर देते हैं उस एक एरिया के बारे में कि वो बच्चा या बच्ची अपनी सेल्फ एस्टीम जो है ना, वो सिर्फ उस एक एरिया से लेना शुरू कर देता है। एंड लाइफ जो है वो अनएक्सपेक्टेड वेज में फोल्ड आउट होती है आमतौर पर, और अनफोल्ड होती है आमतौर पर। उसमें फर्ज कीजिए एक बच्चे को आपने बचपन से ये कहा कि ये बहुत अच्छा डांसर है, ये बहुत अच्छा डांस करता है, ठीक है जी। उस बच्चे ने अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ एस्टीम का एक बड़ा सोर्स जो है वो ये बनाया कि मेरे पास एक स्किल है कि मैं डांस करता हूँ, एवरीबॉडी एंजॉयज, आई कैन एंटरटेन पीपल। बट खुदा न खास्ता अगर वो बच्चा अपनी टांगे लूज कर देता है किसी हादसे में, तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम के एक क्राइसिस में चला जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि आप बच्चे को एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके टैलेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके उठने बैठने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके मैनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, द वे ही और शी टॉक्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज मैनी बास्केट्स एज पॉसिबल आप चाहे वो क्रिएट करें जहां से उसकी सेल्फ एस्टीम आ रही हो। किसी एक एरिया में अगर वो स्ट्रगल करना शुरू कर दे लाइफ में, जो कि आप किसी भी वक्त किसी भी एरिया में स्ट्रगल करना शुरू कर सकते हैं, लाइफ इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो आप फिर बाकी सोर्सेस है जो अपनी सेल्फ एस्टीम जो है वो लेते रहते हैं, एंड यू डोंट फील कि अचानक से आपका सब कुछ छिन गया हो। आपने एक सिंगल सोर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम के अंदर अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड किया हुआ होता है, वो आइडेंटिटी जब खत्म होती है तो यू फील वेरी वेरी बैड। बेहतर यही होता है कि इसको फैला लिया जाए, जितना फैला लिया जाए उतना ही बेहतर होता है। और पेरेंट्स की अप्रिसिएशन जो है, पेरेंट्स की सेलिब्रेशन जो है, एक बच्चे को जब वो बड़ा हो रहा है, एक बच्ची को जब वो बड़ी हो रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एवरी सिंगल स्टेप, कम से कम पहले 5 साल तो मैं बहुत बहुत सीरियसली रिकमेंड करता हूँ कि एवरी सिंगल न्यू थिंग जो कि आपका बच्चा या बच्ची करते हैं, उसके ऊपर एक वाजे तौर पर जो कि ह्यूमन एक्सप्रेशन हम फेस से देते हैं, हम कहते हैं कि वाओ वाओ, हम करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, या हम तालियां बजाते हैं, जो उनके लिए डीकोड करना आसान होता है कि ये अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो उस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाना चाहिए। द बेस्ट थिंग और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पेरेंट अपने बच्चों को देते हैं वो ये कि उनको उनके होने को सेलिब्रेट किया जाए। अगर आप 5 साल अपने बच्चे के होने को सेलिब्रेट करें, अपनी बच्ची के होने को सेलिब्रेट करें, तो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली फील करता है कि द वर्ल्ड इज क्वाइट सेफ, और I can actually express myself, and whenever I do something new, whenever I learn something new, तो मेरे आसपास के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। This is something, learning is a very good endeavor to go on, और मैं उसके ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो बच्चे और बच्चियां खुद ही वो उस endeavor के ऊपर चल पड़ते हैं, and learning is something जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए अप्रिसिएशन पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। मैं बिल्कुल खुबैब साहब आपसे अग्री करूंगा। आई कैन नरेट a personal incident. I remember मैंने एक half day workshop attend की, got the opportunity on parenting, और उसमें उस रिसोर्स ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, जिसका आपने भी अभी कहा कि डाइवर्सिफाई योर पूल ऑफ चाहे आपने किसी चीज पे टोकना है या किसी चीज को अप्रिशिएट करना है। उसने कहा साहब ने कि जी labeling should really be avoided, चाहे it's positive labeling or negative labeling, and one of the examples that he gave was कि जी for example आप constantly एक बच्ची को कहेंगे कि ये बच्चा तो जी is so hard working, they get up really early, so they're an early riser, और वो बेचारा बच्चा बाकी सारी जिंदगी the moment that they sleep in a little bit, वो जी mentally they will be saying कि यार नहीं I'm an early riser, I've been appreciated as an early riser। तो they no matter how late they sleep or if they haven't caught up on sleep, एक self-fulfilling या self-defeating एक thought आती है, and so whether positive or negative, be careful on how, चाहे आपके colleague हो, बच्चों के लिए तो I think और भी ज्यादा जरूरी है as parents कि जी इसको labeling को और इन thoughts को जरा
avoid करें. Appreciation for sure, and of course wherever required disciplining, लेकिन in the ambit of even keel. ये बताइए आप, I think खुबैब साहब के जो हम सुसाइड देख रहे हैं, and I'm sorry to bring this up, I hope इसको हम एड्रेस कर सकेंगे with your personal perspective in mind as well. Recently suicide cases in adolescent teens in particular, male female, काफी on the rise हैं पाकिस्तान में in the youth. Do you think we are seeing the manifestation of low self-esteem issues and other health problems? आपने health की बात की कि जी जब health problems होते हैं या those manifested themselves in low self-esteem, इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम time spend कर सकें, आपकी क्या thoughts हैं? जी बिल्कुल, सेल्फ स्टीम का डेफिनेटली फिल वक्त पाकिस्तान में जब हम सुसाइड की रिसर्चेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, सुसाइड रेट के बारे में या सुसाइड की कॉजेस के बारे में, तो वो रिसर्चेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं इसके बारे में बातचीत करने के लिए. बट जो अखबारों में रिपोर्ट होती हैं, खबरें रिपोर्ट होती हैं, उनको अगर हम देखें तो उनमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि एक बच्चा जो थोड़ी देर पहले हमने बात की कि उसके अगर एकेडमिक्स में उसके मार्क्स कम आ गए या वो फेल हो गया, ही बिलीव्ड कि बस लाइफ खत्म होगी और उसकी जान ले, तो ये तभी होता है जब आपने अपना सब कुछ जो है वो किसी एक के लिए लाइफ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है. तो बेहतर यही होता है कि उसको डाइवर्सिफाई कर लिया जाए. और सेल्फ स्टीम के हवाले से जब हम यंग लोगों की बात करते हैं तो यंग लोग जो है हमें काफी मुश्किल में इसलिए नजर आते हैं क्योंकि पहले लाइफ जो है वो बहुत सिंपल थी और सिर्फ बच्चों को शायद सीखना होता था. बच्चे बड़े जो है, माँ बाप जो है वो काफी हद तक लाइफ के बारे में जानते होते थे, वो अपने एक्सपीरियंस, और बच्चे थोड़ा बहुत सीखते थे तो चीजें चल जाती थी. अब ऐसा नहीं है. अब बहुत तेजी से डिजिटल वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रहा है और पेरेंट्स के लिए उस स्पेस को कैप्चर करना जिस स्पेस से डिजिटल वर्ल्ड चेंज हो रही है और बच्चे और बच्चियां एक्सपोज हो रहे हैं, वो पेरेंट्स के लिए एक बहुत मेजर चैलेंज बन चुका है. आज से पहले, आज जिस साल के अंदर हम बैठे हुए हैं, इस साल से पहले या इन 4-5 साल से पहले कभी भी मैं अपने पेरेंट्स को ये नहीं कहता था कि जी आप जो है वो लाजमन जो है वो पेरेंटिंग के कोर्सेज करें. बट अब मुझे लगता है कि तमाम पेरेंट्स को लाजमन जो है वो पेरेंटिंग के कोर्सेज के अंदर जाना चाहिए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं यंग लोगों के सामने. और वो चैलेंजेस आमतौर पर जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे आप मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं, क्योंकि हमारा तो इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, तो हमें रेगुलरली ऐसे यंग लोग मिलते रहते हैं जो कि सिर्फ इस वजह से परेशान है कि दे डोंट हैव लाइक्स, दे डोंट हैव कमेंट्स ऑन देयर पिक्चर्स. तो मेरा अपना एक छोटा भाई है जो कि रेगुलरली जब भी कोई पिक्चर अपलोड करता है तो वो हमेशा मुझे रिक्वेस्ट भेजता है साथ कि इसके नीचे आपने कमेंट करना है राज. तो ये इंपॉर्टेंट है आप किसी वजह से उनके लिए. हमें ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसके अंदर जो चैलेंजेस मौजूद हैं उनको समझना चाहिए. जब तक हम उनको समझेंगे नहीं, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कहने के लिए, एक मुश्किल चीज है कहने के लिए, बट आई बिलीव के ये वर्ल्ड बड़ा होता जा रहा है और ये जो इंसिडेंसेस हैं इनकी ज्यादा तादाद जो है उसको हम देख सकते हैं होता हुआ नियर फ्यूचर में, इफ वी डोंट चेंज आवर स्ट्रेटजी. एंड स्ट्रेटजी कैन बी चेंज एट एनी टाइम फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्कूल्स, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द कम्युनिटीज. बस प्रोएक्टिव होने की जरूरत है और आज की चीजों को, आज के चैलेंज को समझने की जरूरत है. ठीक हो गया. आई थिंक आपने ये सोशल मीडिया वाला जी एंगल जो कहा एंड द नीड फॉर पॉजिटिव एंड एफर्मेशन का इतना ज्यादा और इंस्टेंट वो आई थिंक फीडबैक का जो निज़ाम आ चुका है, दैट रियली हैज डिस्टर्ब्ड दिस होल प्रोसेस एंड ऑब्वियसली शेप्स यू एंड योर पर्सनैलिटी. आपने जिस तरह बात की कि जी आई थिंक जेनेटिक्स प्लेज अ रोल, योर पर्सनैलिटी plays a role, and then drawing comparisons. Unfortunately, social media also allows you to draw very quick comparisons. अब चाहे reality or no reality, आप लोग post कर रहे होते हैं, which is not, as we have heard in the past, is not really reality. They are just posting pictures and pretending के जो हो रहा है, but that does actually have a very negative influence on a lot of people. So Baki, I think there's lots of benefits to social media, but I think harnessing and unfortunately recognizing uski jo ill qualities hai, that's extremely important. How do you feel ke ji either अगर unfortunately adolescent youth जो हैं वो बहुत introspect नहीं करते अपने आप में, but let's say if they do, how can they improve their lost self-esteem? Or let's say us as a university which are coming across and are probably hand-holding through many years youth,
हम ये चीज कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? माशाल्लाह we have a psychology department, excellent faculty in this department as well. How can we assist the youth in developing and building their lost self-esteem? देखिए, अगर तो जो मेन मार्कर्स हैं, जिनको हम, जो इंडिकेशंस हैं जिनको हम देख रहे होते हैं लो सेल्फ एस्टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, if a child is or a young person is struggling to be assertive in his life, in her life, ये एक बेहतर मार्कर है. अगर वो अपनी क्वेश्चन नहीं करता क्लास के अंदर, जो है वो कभी भी क्लास के अंदर बोलता नहीं है. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो अकेले में पूछे जाते हैं उनके जवाब उनको आते होते हैं, लेकिन क्लास में सबके सामने नहीं बोल रहे वो. बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. अगर वो, जैसे एक यंग पर्सन का एक फ्लो होता है पर्सनैलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज का, इफ दैट फ्लो इज मिसिंग, इफ यू सी के कंधे हमेशा ढलके हुए हैं और जो है बात करते हुए आंखें बहुत ज्यादा चिपकाई जा रही हैं और हाथों की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं एंड आई कांटेक्ट नहीं मिलाया जा रहा रूटीन की बातचीत के अंदर भी, तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनको हम फौरी तौर पर देख सकते हैं और फौरी तौर पर असेस कर सकते हैं. लेकिन ये वो चीजें हैं जिनको हम आप कहिए कि आंख से या अपनी हिस्सियात से, अपनी सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, फौरी तौर पर उनको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं. ऐसा भी मौजूद है कि हम सेल्फ एस्टीम जो है उसको मेजर कर सकते हैं. हमारे पास उसके स्केल्स मौजूद होते हैं. साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे सेल्फ एस्टीम जो है उसको मेजर किया जा सकता है. किसी भी, अगर आप पूरी क्लास की भी मेजर करना चाहें, इफ यू फील देयर इज सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिनको जरूरत है इसकी, तो उनके साथ भी आप कर सकते हैं किसी ट्रेनिंग के दौरान, किसी वर्कशॉप के दौरान, एंड देन यू कैन डिवाइस स्ट्रेटजीज की किस तरीके से उनको असिस्ट किया जा सकता है. असिस्ट करने का एक ही तरीका, आई बिलीव, कि जब आप टीचर के रोल के अंदर होते हैं तो टीचर के रोल के अंदर टीचर का रोल जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है हमारी सोसाइटी में. मुझे कभी भी उससे कोई बहुत ज्यादा जो है वो बहुत बोरिंग टाइम गुजरा मेरा, खासतौर पर स्कूल के अंदर. टीचर्स जो है वो ये समझते हैं कि जो करिकुलम जो है ना उसको कंप्लीट कराना वो टीचिंग है. आई डोंट बिलीव कि वो टीचिंग होती है. वो एक छोटा सा पार्ट है एंड उसका कोई खास टीचिंग से ताल्लुक नहीं. टीचिंग इज के आपने जो सीखा उसको लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसको अपने लिए और दूसरों के लिए फायदेमंद कैसे बनाना है. तो टीचर्स को ये सिखाना होता है, लाइफ सिखानी होती है बेसिकली. तो टीचर्स का बेसिकली ये काम है कि वो छोटी से छोटी एफर्ट जो एक स्टूडेंट करता है क्लास के अंदर वो उसको सेलिब्रेट करें. इफ यू फील के आपकी क्लास में 4, 5, 3, 10 बच्चे बच्चियां हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इनिशियली बाकी सबसे पेस मिलाने में, तो आपको उनको खास तौर पर अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी छोटी से छोटी एफर्ट को. इवन इफ यू थिंक के somebody is not asking question पिछले 6 महीने से और एक दिन उसने हल्का सा यूं हाथ खड़ा किया और फिर हाथ नीचे कर लिया, तो आप उसको भी नोटिस करें और आप कहें कि एक्सीलेंट, आपने भी हाथ उठाया एंड आई बिलीव यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, प्लीज शेयर योर क्वेश्चन. ठीक है, उनको असिस्ट कीजिए इस तरह से करके. बहुत बड़ा जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल तक आए स्टूडेंट को भी और किसी भी इंसान को कोई बहुत बड़ा मेजर किस्म का जाना पुश नहीं चाहिए होता अपनी सेल्फ एस्टीम के रिजर्वायर के अंदर झांक लेने के लिए, उस तक पहुंच जाने के लिए. छोटा सा एक पुश, छोटी सी अप्रिसिएशन ऑन द करेक्ट टाइम जो है, एंड दैट कैन डू द मैजिक. और मैंने इसको काफी दफा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा हुआ और अपनी लाइफ को भी मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं लोगों के जिन्होंने मेरा वो जो आप कहिए कि सेल्फ बिलीफ डेवलप किया और मेरे अंदर सेल्फ एस्टीम ढाली. और वो छोटे छोटे सेंटेंसेस आज भी मेरे साथ हैं. मे बी वो 20 साल पहले कहे गए थे, 10 साल पहले कहे गए थे, बट आई कैन राइट डाउन कि वो एग्जैक्टली 10 सेंटेंसेस क्या है मेरी लाइफ में जो फलां फर्द ने फलां मौके पे मुझे कहे थे और उसके बाद मैंने उस फील्ड के अंदर कितना एक्सेल किया. तो ये छोटी छोटी चीजें जो है उनके ऊपर नजर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सपोर्ट सिस्टम जो है वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में, एक यूनिवर्सिटी में एक बड़े फर्द हैं, उम्र में बड़े, एक्सपीरियंस में ज्यादा है, नॉलेज में ज्यादा है, तो हमें करिकुलम्स को कंप्लीट नहीं करवाना बल्कि हमें एक एम्पैथी और कंपैशनेट दिल के साथ जो है वो सारी चीजों को जो है वो डील करना, उनको बड़े प्यार से, बहुत सेंसिटिव, बहुत डेलिकेट चीज है इंसान हैंडल करने के लिए. एंड इफ यू आर इन एनी काइंड ऑफ पोजीशन जहाँ पे आपके पास इंसान हैंडल करने के लिए मौजूद है, तो आपको अपनी डेलिकेसी से सारी चीज को डील करना चाहिए. Wonderfully said, Khubaib साहब. I'll 100% echo. कि देखें ये young lives हैं, youth है, they've got a whole lifetime ahead of them. माशाल्लाह से जो हमारे university students हैं, they're already way ahead of most and the sort of opportunities that they are getting and they are making use of. So I will certainly encourage जो हमारी आज faculty ये सुन रही है और जो बाद में भी recorded version सुनेगी, I will definitely encourage, आपने जो सही कहा कि compassionate, empathetic individuals हमें produce करने हैं, and the support system that we offer, alhamdulillah, by virtue of the psychology team,
Professor Nomana and her team, even our Pro Vice Chancellor, Dr. Najma Najam, is a psychologist and a leader in her area. So, mashallah, we're happy to say, KG, we hope we are providing KG a microcosm, a safe space for these students to grow and to address their needs. We are almost at time, Khubaib साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा एक मौका लेना चाह रहा था क्योंकि माशाल्लाह आपकी एक पर्सनल जर्नी इस तरह की है where we have benefited greatly from these last 30 minutes. If we can just switch the last two questions in terms of your views, कि आप एक trained psychologist हैं, clinical psychologist हैं, इसका career और इसका scope के बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें, how your experience has been. जी, करियर जो है इसका क्लिनिकल, बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, मैं आई नीड टू बी ऑनेस्ट, काफी जब हम बात करते हैं बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद है बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से। गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं वहाँ पे इट टेक्स क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम, जहाँ पे आप जो है वो अपने आप को सेटल करते हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। तो आई ऑलवेज सजेस्ट यंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अर्ली, और अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह जो है उनको आप जो है वो मे बी इन योर 5th सेमेस्टर जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट यू कैन एक्चुअली नो के व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू आर गोइंग टू टेक अप, और उसको डिजाइन कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। फील्ड ओवरऑल स्पीकिंग, फील्ड जो है वो काफी हद तक अभी भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लिए हुए है, एंड हमारे जो मुल्क है उस मुल्क को भी बहुत ज्यादा ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। और इफ समबडी इज थिंकिंग अबाउट कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो मैं उनको चाहूंगा कि वो फिल्म्स देखें, वो डॉक्यूमेंट्रीज देखें, वो बुक्स पढ़ें, वो कहानियां पढ़ें, वो लिटरेचर पढ़ें, और सिर्फ अपनी साइकोलॉजी की बुक्स के साथ जो है साइकोलॉजी कम से कम पाकिस्तान में, आई बिलीव पूरी दुनिया में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। यू शुड बी अ गुड स्टोरी रीडर, यू शुड बी अ गुड स्टोरी टेलर, यू शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर, और ये सब कुछ बनने के लिए आपको फिल्म्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर, ड्रामास के अंदर, ह्यूमन स्टोरीज जो आपके आसपास अनफोल्ड हो रही हैं, हर चीज के अंदर आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए। अदरवाइज आप जो है वो बुक्स की थ्योरी जब लगाना शुरू करेंगे इंसानों के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि आप कंप्लीटली फेल्ड, और वो इसलिए फेल हो रहे होंगे बिकॉज आपका वो जो नॉलेज है वो यहाँ के लोगों की, यहाँ की कहानियों से जो है वो मेल नहीं खा रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ के लोगों के अंदर जुड़ी हुई, उनके अंदर बसी हुई, उनके अंदर उनकी खुशबुएं जो है ऑब्जर्व की एक लाइफ आपके पास हो, तो उसी की मदद से ही आप यहाँ की स्टोरीज को जो है वो रिसीव कर सकते हैं एक अच्छे दिल के साथ। अदरवाइज ये काफी चैलेंजिंग हो जाएगा सबके लिए। वेरी वेल सेड, माशाल्लाह। बिल्कुल, आई थिंक आपने जहन खोलने के लिए यू हैव टू रीड, डाइजेस्ट, अब्सॉर्ब not just your psychology course books but across all areas. Khubaib साहब, again almost being at time, एक जो हमारा standard last question होता है and आपके लिए particularly relevant है because माशाल्लाह आपने obviously हर रोज youth के साथ interact करते होंगे। That is कि जी हमारे आज young students जो either enter कर रहे हैं अपना education career, those who are with us or those who are about to graduate, उनके लिए आप क्या पैगाम छोड़ना चाहते हैं as we break off from the show? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जॉब मिले या ना मिले, दे आर वेरी वेरी प्रीशियस पर्सन। पाकिस्तान में शायद मुझे एक्चुअली नहीं पता, मुझे लगता है कि 5% लोग ही जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक पहुंचते हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन दुनिया के 5-6 बड़े मुल्क में, उसके सिर्फ 5% के अंदर अगर आप शामिल होते हैं तो आप बहुत 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 कीमती हैं इस मुल्क के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। एंड नेवर लेट योरसेल्फ डाउन। किसी भी जो एक फेज आता है लाइफ का छोटा मोटा, जो जब थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ कि डिग्री के बाद, बट वो स्ट्रगल जो है दैट इज समथिंग जो कि आपको लेटर ऑन लाइफ में काम आएगी। और नेवर लेट योरसेल्फ डाउन। आप बहुत बहुत कीमती हैं, एंड चीजें बेहतर तरीके से अनफोल्ड होंगी, अच्छे तरीके से अनफोल्ड होंगी। रिमेंबर कि हमारे पास ट्रेंड लोगों की बहुत कमी है। पाकिस्तान का जितना भी क्राइसिस है किसी भी सेक्टर का, वो सारे का सारा सिर्फ इसलिए है कि जिस सेक्टर के क्राइसिस की हम बात करते हैं, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो वहां पे ट्रेंड लोग मौजूद नहीं है। जैसे ही हम ये ट्रेनिंग का और ट्रेंड लोगों का खिलाफ फिल कर लेंगे किसी भी सेक्टर में से, हमारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। हमारे मसाइल सिंपली ये हैं कि हमारे पास ट्रेंड लोग मौजूद नहीं है। हमने अनट्रेंड लोगों को डिफरेंट सेक्टर्स दिए हुए हैं, और वो अनट्रेंड लोग ही जो है वो सेक्टर्स को दबा करके यहाँ तक लेके आए हैं। तो आई बिलीव के बेहतरीन ट्रेनिंग नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आप लोग हासिल कर रहे होंगे या करेंगे। जब भी आप इसको ज्वाइन करेंगे,
यू आर इन सेफ फ्रेंड्स. मैं नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की काफी टीम को जानता हूँ. आज सलीम साहब से बात हुई और आई फाउंड हिम अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन. डॉक्टर नुमाना इज माई टीचर, मेरी इंस्पिरेशन है. मुझे काफी कुछ सिखाया उन्होंने, और मुझे लगता है जहाँ पे वो है वहाँ पे काफी लोग महफूज हैं. अगर वो जहाँ पे मैं पढ़ रहा था, आई वॉज अ क्रिएटिव पर्सन, तो मैं शायद कभी भी ना पढ़ पाता, अपनी डिग्री भी कंप्लीट ना कर पाता अगर मेरे आसपास नुमाना मौजूद ना होती, जो कि मेरे पेरेंट्स को जो है वो अप्रिशिएट कर रही होती. बाकी लोग तो उनको नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या चीजें. तो मुझे लगता है कि कभी भी मत भूलें कि आप एक कीमती इंसान हैं इस मुल्क की कहानी में, अपने खानदान की कहानी में, अपनी कम्युनिटी में. एंड बेस फॉर द चैलेंजेस you can deal with them, inshallah. Inshallah. Thank you so much, Khubaib Saab, and I thank you for recognizing Professor Numana. Big shout out to Professor Numana and her team leading the psychology department at Noor International University. Mashallah, हमारे सामने एक नुमाया हस्ती बैठे हैं who has benefited from Dr. Numana's education, नहीं, but I think a living example of success. So thank you for your kind words for Noor International, for Professor Numana. And with that, we are at time. Khubaib Saab, I'd like to take the opportunity to thank you for your time, for spending the last 35 minutes with us. I hope it's been fruitful for our viewers, our listeners who are listening currently, and those who will listen later. With that, we will beg goodbye. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you very much. Thank you. Stay blessed. Thank you.